Now Microsoft in Word is a composer which create the document like letter, memos, CVs, newspaper, brochure and books. Same as like InPage Urdu is also application software which fulfill your desire, your task to write the data in Urdu form. اردو لینگویج کے اندر آپ جو ہے جتنا بھی مٹیریل آپ نے خط و کتابت کرنی ہے، آپ نے لیٹر کرنا ہے، لکھنا ہے، اسی طرح آپ نے کوئی سٹوری لکھنی ہے، بک لکھنی ہے، اردو کے اندر آپ ان پیج سافٹ ویئر جو پیکیج ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. ابھی ہم ان پیج اردو کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ان پیج اردو جو ہے وہ آپ کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. InPage is a Urdu word processor with many features like Word. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا Word کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، آپ لیٹر لکھتے ہیں، آپ میموز بناتے ہیں، آپ بروشرز بناتے ہیں. تو اس طرح جو ہے آپ کے پاس اردو is a word processor with many features like Word. You can InPage Urdu as well as English typing. You use Urdu letter, writing, composing, printing, document create using InPage, save with extension کیا ہے جی INP. Word کے اندر extension تھی DOX. اسی طرح آپ کی extension تھی، آپ کے پاس Excel کی extension ہے XLS. اسی طرح آپ کے پاس کوئی بھی سافٹ ویئر ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی آپ کی ایکسٹینشن فائل ہوتی ہے. تو ان پیج اردو کے اندر جو ایکسٹینشن فائل ہے وہ کون سی ہے، INP. جب بھی آپ نے اردو کی فائل جو ہے وہ سیو کرنی ہے تو کس ایکسٹینشن سے کرنی ہے، INP کے نام سے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں انٹرفیس سیم لائک آپ نے مائکروسافٹ ورڈ کا انٹرفیس دیکھا، اسی طرح آپ جو ہے اب ان پیج اردو کا سافٹ ویئر سیم. اسی طرح آپ کے پاس فائل مینیو، ٹول بارز، ریبنز اور اسی طرح آپ کے پاس کرسر سیم اسی طرح جس طرح آپ نے ورڈ کمپوزر دیکھا تھا. تو اسی طرح ہی کسی بھی فائل کو نئی فائل بنانے کے لیے ہم Ctrl+N کرتے ہیں، پرانی فائلوں کو اوپن کرنے کے لیے ہم Ctrl+O کرتے ہیں. اسی طرح آپ کسی بھی ڈاکومنٹ کو سیو کرنے کے لیے Ctrl+S کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کسی بھی پروگرام کا پرنٹ لینا ہو، ڈاکومنٹ کا پرنٹ لینا ہوتا ہے تو Ctrl+P کرتے ہیں. تو یہ کچھ آپ کے پاس شارٹ کٹ کمانڈز ہیں جس سے آپ جو ہے اس سے ہیلپ کرتے ہیں. ورکنگ ود نیو فائلز یوزنگ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نئی فائل بناتے ہیں. جیسے ہی آپ نئی فائل بناتے ہیں تو آپ نیو پہ کلک کرتے ہیں، ایک آپ کے پاس ڈائلاگ باکس اوپن ہو کے آ جاتا ہے جو کچھ معلومات آپ سے لیتا ہے. معلومات کیا لیتا ہے کہ آپ نے جو پیج ہے وہ کون سا رکھنا ہے، لیگل سائز، لیٹر سائز، A4 سائز. اسی طرح آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ اورینٹیشن آپ نے لینڈسکیپ رکھنی ہے یا پورٹریٹ رکھنی ہے. اسی طرح آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ مارجن آپ نے لیفٹ، رائٹ، ٹاپ، باٹم کیا رکھنا ہے. اسی طرح آپ سے کالم بھی پوچھے جاتے ہیں. تو جیسا کہ میں ابھی نیکسٹ سلائڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ والی جو سلائڈ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ٹول باکس ہے. جیسے ہی آپ نے نیو ڈاکومنٹ اوپن کیا آپ کے پاس پیج سے ریلیٹڈ جو ہے معلومات آ جائیں گی. آپ نے A4 سائز کرنا ہے، وڈتھ کتنی ہے، ہائٹ کتنی ہے، اس کی اورینٹیشن کہ آپ لینڈسکیپ میں لے رہے ہیں یا آپ پورٹریٹ میں لے رہے ہیں. تو آپ پہلے بھی بتایا کہ لینڈسکیپ کون سا ہوتا ہے، پورٹریٹ. لینڈسکیپ وہ ہوتا ہے جس کی چوڑائی زیادہ اور لمبائی کم ہے. اسی طرح پورٹریٹ جس کی لمبائی زیادہ اور چوڑائی کم ہے. آپ کے پاس مارجنز ہیں، لیفٹ مارجن، ٹاپ مارجن، باٹم مارجن. اسی طرح کالم ہے اور زوم ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے پاس بوٹر پوزیشن کا بھی بتایا ہوا ہے. تو آپ یہ اوکے کرتے ہیں تو ایک نیا آپ کے پاس پیج اوپن ہو جاتا ہے جو بلینک آپ کے پاس ان پیج ہوتا ہے. اس کے اندر آپ بلینک کے جب پیج اوپن کرتے ہیں کریٹ اے نیو ان پیج ڈاکومنٹ تو یہ ورکنگ ایریا آپ کے پاس اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے ان پیج، فائل مینیو.
आपके पास बार्स होती हैं और इसी तरह आपके पास टूल बार्स हैं, और ये फर्दर जो है हम आप इसके बारे में भी आपको दिखाते हैं कि आप किस तरह का डाटा जो है इन पेज के अंदर लिख सकते हैं। अब सारे आप अरबी भी लिख सकते हैं, आप पश्तो भी लिख सकते हैं, आप फारसी भी लिख सकते हैं। इसी तरह इन पेज जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। अब फॉर एग्जाम्पल आप उसमें पोइट्री लिख सकते हैं, जैसा कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो आप अभी आप देखिएगा कि नेक्स्ट स्लाइड में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप इसी तरह की टाइपिंग आप कंपोजिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। इसी तरह दुनिया का सबसे उम्दा पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, और इन पेज में आप अरबी, फारसी, सिंधी, पश्तो, कश्मीरी की तमाम तर खसूसियात हैं। ये इन पेज जो है वो प्रोफेशनल एक मुकम्मल पायदार सॉफ्टवेयर है जो आपको उर्दू, अरबी, आपके पास सिंधी, सराइकी, इसी तरह बहुत ही आप मुख्तलिफ ज़बानों में आप जो है इसको दिलचस्प और आसान तरीके से आप चला सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे ये जो है कसीरुल लिसान मतन और फन की सही तर्जुमानी करने वाला इंजन पर मुनहसर है उर्दू इन पेज, जो कि उर्दू की राइटिंग के लिए, कंपोजिंग के लिए इसमें आप देखते हैं। अच्छा, इसी तरह बहुत ही खूबसूरत यकसा तैयार कर सकते हैं, पेज यकसा तैयार कर सकते हैं आप। इन पेज से नाता जोड़ने के लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए, 5 मिनट दरकार। कितने चाहिए आपके पास? 5 मिनट दरकार हैं। आप क्या करते हैं, 15 मिनट के अंदर आप न्यूज़ लेटर बना सकते हैं, आप ब्रोशर्स बना सकते हैं, आप विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, और किसी भी खूबसूरत आप खत डिज़ाइन कर सकते हैं, आप बर्थडे कार्ड बना सकते हैं। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही पायदार है। विंडोज़ XP, विंडोज 10 ये वगैरह इन पे प्रोफेशनल के ज़रिए आप काम इससे ज़्यादा आसान और दिलचस्प तरीके से कर सकते हैं। देखिए, कोई भी अब मैंने आपको पहले आपको बताया था कि जब आप के रॉ फैक्ट्स को इकट्ठा करना है, क्या है रॉ फैक्ट्स को इकट्ठा करना है। जैसे मैंने आपको डाटा के बारे में बताया था। व्हाट इज डाटा? डाटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। आम चीज, आम जगह, आम मालूमात, आम हिदायत जो है वो डाटा कहलाती हैं। एंड आपके पास इंफॉर्मेशन, रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स, खास चीज, खास मालूमात, खास हिदायत जो है वो आपकी क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन। डाटा के अंदर आपकी कंप्लीशन हो सकती है, डाटा के अंदर आपका जो है रॉ फैक्ट्स है, आपके पास जो है मलवेयर भी हो सकता है, इसी तरह आपके पास झूठ मूठ भी हो सकता है, हकीकत पर मबनी चीज़ें नहीं होती। इसी तरह इंफॉर्मेशन जो है वो हकीकत पर मबनी होती है, रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया था नॉलेज के लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू वन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉलेज। तो इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 अल्फाज हैं, 100 वर्ड्स हैं, तो आप एक इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। अगर 100 जो है इंफॉर्मेशन है तो आप रेलेवेंट टू वन ऑब्जेक्ट आपके पास नॉलेज है। अगर आपके पास 100 टाइम्स किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज है तो आप एक्सपीरियंस मैन हैं। अगर आप 100 टाइम्स जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं उसमें तो आप विजडम मैन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है आप मैंने आपको एग्जांपल से वाज़ेह किया था कि याद होगा कि हम अगर अली पे रिसर्च करते हैं, अली को ढूंढते हैं, हम आपकी क्लास में अली नाम का लड़का बैठा हुआ है, तो उसको अगर पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढा जाए, कि पूरे पाकिस्तान में ढूंढा जाए या पूरी दुनिया में ढूंढा जाए, तो कई अली नाम के लड़के आ जाएंगे, ठीक है। अगर इसी तरह हम एक स्पेसिफिक नाम ढूंढना चाहें जैसे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो दुनिया जहान में एक है आपके पास। तो ये वो डाटा था, ये इंफॉर्मेशन, और इसी तरह आप मालूमात का मजमूआ है, आप इंफॉर्मेशन रखते हैं, आप नॉलेज एबल पर्सन है, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा है। और इसी तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि कौन से जो है ना जानवर जो है वो बच्चे देते हैं और कौन से जानवर जो है वो
अंडे देते हैं, तो वो ऐसे जानवर जिनके कान जो है बाहर होते हैं वो क्या देते हैं जी, बच्चे देते हैं, और इसी तरह जिनके कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं। तो इस किसी ने पूछा आपसे, तो आपने सबका जवाब दिया, किस बेस पे जवाब दिया? आपको एक्सपीरियंस था, फिर आपने विजडम की, और जब आप इस चीज के बारे में जब एक्सपीरियंस से भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो देन यू मेक योर मॉडल, रोल मॉडल। हमारी जिंदगियों के लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, आसान नमूना है, क्योंकि आप हर एक चीज में जैसा कि हजरत अली ने किसके पास परवरिश पाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास परवरिश पाई। आपने बचपन से लेकर आपने ऑनवर्ड तक आप उनके साथ रहे, आपने उनको देखा, विजडम, उनके मॉडल, क्योंकि हमने अपनी जिंदगियों को अगर एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात के मुताबिक गुजारना है तो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हमारे लिए एक रोल मॉडल है, वो हमारे लिए हमारे नबी की ज़िंदगी हमारे लिए। अगर आप उस्ताद बनना चाहते हैं तो हमारा नबी हमारे सामने एग्जाम्पल है, अगर आप एक शौहर बनना चाहते हैं हमारा नबी हमारे सामने है, इसी तरह आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, दुनिया का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें मेरे नबी ने रहनुमाई ना फरमाई हो। तो आगे मैं आपसे एक नज़म शेयर करूंगा जो पहले भी आपसे नज़म शेयर की है, तो इसमें इन पेज के अंदर आप इस तरह की आप नज़में राइट्स कर सकते हैं और आपको एक उम्मीद देगी। तो हाँ जी, बेरोजगार नौजवानों से मेरी इल्तमास है, मेरी गुजारिश है, ऐ नौजवान बेअमल, पढ़ते जाएं, हाँ जी, ऐ नौजवान बेअमल मायूस क्यों है आजकल, हाँ जी, ऐ नौजवान बेअमल मायूस क्यों है आजकल, सर्विस नहीं मिलती तुझे, सर्विस पे लानत भेज दे, एमए की डिग्री फाड़ दे, गर्दन औसत झाड़ दे, गर्दन औसत झाड़ दे, सर पे अंगूठा छाल ले। सर पे अंगूठा छालने का मतलब ये होता है कि आपने सर पे छापा रखा हुआ होता है और आपने कोई जो है ना बंदर के बच्चे पाल ले। आपने देखा होगा उनका बाज़ दफा कोई टोकरा रखा होता है, बाज़ दफा जो है एक कपड़ा बांधा हुआ होता है, कहीं से रोटी मिल गई, कहीं से जो है ना वो दाने मिल गए, कहीं से आटा मिल गया, तो उसने उसी जो है छाल के अंदर रखता जाता है। तो अब क्या है जी, एमए की डिग्री फाड़ दे, गर्दन औसत झाड़ दे, हाँ, सर पे अंगूठा छाल ले, और क्या करें, बंदर के बच्चे पाल लें। हाँ जी, क्या करना है जी, बंदर के बच्चे पाल लें। अब आगे क्या करना है, आगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंस, विजडम एंड देन मॉडल। मॉडल इज व्हाट इज मॉडल? बाजार में जा, क्या कर, बाजार में जा, करतब दिखा, बाजार में जाके मजमा लगा, मजमा लगाने के बाद करतब दिखा और पैसा कमा। द मेन मोटो टू अर्न द मनी लाइवलीहुड, ठीक है। आप अपनी नेक रोजी कमाते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको करतब दिखाना होगा। तो करतब, जिसके पास हुनर है, फन है, तो वो उस हुनर फन के जरिए अपने करतब को दिखाता है, लोगों को बताता है, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, अपने फन के बारे में बताता है। वो जैसे इस शायर ने क्या खूब कहा है कि आप जो है एक डुगडुगी बजाते हैं, लोगों को मतवज्जे करते हैं, और फिर बांदर का तमाशा लगाकर आप कहते हैं चलो मिल सलाम लगाओ, देखो कौन आपको सलाम करता है, सलाम करके दिखाओ, और सलाम करने के बाद कहता है देखो जी ये अल्लाह के नाम पे देंगे, कहता नहीं देंगे, देखो दोबारा देखो कोई देने वाला है, फिर भी कहेगा नहीं देगा, हाँ तीसरी बार में हाँ एक है देने वाला, वो उसने बटुए से 10 रुपए निकाले और वो आपको उस बंदर वाले को दे देते हैं। देखते देखते वो काफी सारे पैसे इकट्ठे करता है, करतब दिखाता है, करतब दिखाने के बाद वो चले। अगर 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 ये भी नहीं मंजूर, अगर तो जीने की ये तदबीर कर, तो भाई अगर ये नहीं मंजूर, अब नहीं कर सकते, तो फिर जीने के सलीके सीखो। क्या है, जिन्हें अल्लाह ताला ने आप लोगों को मकसद के तहत पैदा किया है। किसके तहत? मकसद के तहत। हाँ, कोई ना कोई चीज निकम्मी नहीं, जमाने में कोई बुरा नहीं, कुदरत के कारखाने में का हर एक चीज का कोई ना कोई मकसद है। इसी तरह आपका भी कोई ना कोई मकसद है। आप इस दुनिया के अंदर आए हैं, आप उस तरह बन जाएं
जैसे वो किसी शायर ने कहा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ पाना है, दाना मट्टी में मिलके ही गुलजार बनता है। देखें आप, एक जामन है, आजकल मौसम है, जामन का दरख्त एक गुठली होती है और वो जब जमीन में लगती है तो बहुत बड़ा दरख्त बनता है और उससे कितने जो है जामन आप देखते हैं, लाखों के आप जामन देखते होंगे। इसी तरह आप एक बेर है, बेरी की एक गिटक है और वो जमीन में जाती है और वो उसको फल लगता है, फिर वो बड़ी होती है। जैसे मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, लखा बेरी दे लग दे जड़ जाते कच्चे हैं, जेड़े पकड़ लाल मोहम्मद वो खांदे बट जब आपको एक कामयाबी मिल जाती है, जब आपको एक किसी अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं, करतब दिखा कर तो फिर आपको लोग ताने भी देते हैं, आप सुनते भी हैं, तो कभी एतराज़ात का आप जवाब न दें, ठीक है। गो अहेड उम्मीद के साथ हैं, गो अहेड, साबित कदमी के